Okay, so in the previous lecture, we stopped at this point where we were discussing the different malwares that are available. So today we are going to start this thing. You are going to learn that how do we represent this floating point number in the memory, in the RAM. When we say memory, it means RAM. So I've already discussed one point, that whenever we define a variable, let's say float a equal to 3.14. So this number will be represented in a RAM, right? And I told you that float is of 4 bytes. So this a will get this value here, but this is not the exact value which will be saved in the RAM. Can anyone tell me why does computer save all the values in form of 0 and 1 only? Because computer knows only binary Not only language. the binary numbers 0 and 1. Yes, but why only 0 and 1? Why doesn't it understand any other language? So this Sir, is Hanji. so 0 and 1 symbolize on and off. Yes, actually, this is the perfect answer. In computers, we have electric circuits, right? So in electric circuit, if the value is 1, it means the voltage is on. If the value is 0, it means that voltage is off. So it only understands 1 and 0 signal, means voltage is there or voltage is not there. So that's why only binary numbers will be there in the computer. That's why we deal only in binary numbers. So now if you want to convert, let's say 3.5 value in decimal number form, you can do it like this, right? So it will be 11.1. So you know that if you want to convert this floating point number into binary, or maybe if this base 10 into binary, you can do it like this. We all know that. But then this is not something that in RAM, where we have 4 bytes of location. So we will utilize 4 bytes. We will not just write 111 and rest of the thing will be empty. We need something, we need some mechanism in which we will be very sure that yes, this full 4 bytes are being utilized within the RAM. When a space is being given to me in a RAM, we are utilizing everything from left to right. Just to do that, we want to learn this IEEE 754 standard 32-bit floating point representation. So that's the motive of this first topic in सर ये today's lecture. 3.5 को 1 मतलब उसमें हर एक नंबर को ऐसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं. देखो 3.5 को डेसिमल को हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हमें बोला जाए कि इसका बाइनरी बताओ तो इट इज 11.1 इन ए वे. यस और नो? यस क्योंकि सर. क्योंकि हमने ये सीखा था कि इसके वेट्स होते हैं 1 2, और इधर वाले का होता है जैसे ये वाला 1 कैसे आया 2 रेस पर 0 2 रेस पर 1. ठीक है ठीक है. Similarly, in this side we have this weight of 2 raised per minus 1. Yes, sir. ठीक है सर. Yes, but now we want to learn a way कि मुझे 32-bit पूरा utilize करना है for RAM. So that's why we need to learn this thing. So this is how it looks like. अब यहाँ पे डरना नहीं है. I will explain कि यहाँ पे हो क्या रहा है. जैसे हमारे पास total 32 bits हैं, तो we will say that my first bit is my least significant bit and my last bit, the 31 number, is the most significant bit. The counting is from 0 to 31. तभी 32 हुए, ठीक है. And then for the first 23 bits 0 से लेके 22 तक we have this fraction. फ्रैक्शन को हम मैंटीसा भी बोल देते हैं कभी कभी. सो अगर क्वेश्चन में मैंटीसा लिखा आ जाए तो घबराना नहीं है, मैंटीसा मतलब फ्रैक्शन. So we will put the value in this 23 bits जो फ्रैक्शन का पार्ट होगा, और एक्सपोनेंट को हम यहाँ रखेंगे. एक्सपोनेंट के लिए वी हैव 8 बिट्स, ठीक है जी. और साइन नंबर और साइन या फिर मतलब साइन ही होगा वैसे तो. 0 मतलब पॉजिटिव नंबर, 1 मतलब नेगेटिव नंबर. तो जो भी हमारा जैसे साइन है, सपोज मुझे 3.5 को लिखना है, तो माइनस का मतलब मेरा जो 31 नंबर पे बिट होगा वो 1 यूज करेंगे हम. अगर प्लस साइन होता फिर हम 0 डाल देते यहाँ पे. तो साइन बिट का तो समझ में आ रहा है और बहुत आसान है. If my number is positive, I will keep my sign bit as 0. If my number is negative, my sign bit will be 1. तो ये आखिरी बिट का तो समझ में आता है, बट ये बाकी का
31 बिट्स में क्या हो रहा है, वी विल सी नाउ. सो लेट्स से वी हैव 3 पार्ट्स हियर. एक साइन है, एक मेंटीसा है और एक एक्सपोनेंट है. ठीक है. एंड हियर व्हाट इज हैपनिंग इज, जो हमारा ये एक्सपोनेंट है इसका मतलब क्या है, वो है दैट इफ यू कैलकुलेट दिस वैल्यू, अगर आप इसको सारे को सॉल्व करोगे, इट इज गिवन 8 बिट्स हैज 1111100. now if you solve this it will be equal to 4 8 16 32 64 and 128. आप इनका सबका सम करोगे, इट विल बी 124. यही आ रहा है कि कुछ और आ रहा है, एनीवन? सो इट इज 96 112 और 12 124. ठीक है. सो नाउ वी नो दैट माई एक्सपोनेंट, मतलब पावर जो मेरी है वो 124 है. अब इसमें क्या होता है, दिस एग्जाम्पल इज बिट कॉम्प्लेक्स. मैं इसका थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वर्जन ढूंढता हूँ अगर यहाँ पे स्लाइड में है, वरना फिर अलग से समझाता हूँ. लेट्स कंसिडर दिस वन. ये वाला आसान है, समझना भी आसान है और सॉल्व करना भी आसान है. So now let's say that I want to represent my 5.2 value which is decimal number in 32 bit of floating point number, जो कि फाइनल आंसर ये आया. पर ये आया कैसे उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं. Now I know that for this 5.2 when I convert into binary, 5 can be written as 101 and my 0.2 can be written as like this 0.00110011 डॉट 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 डॉट. तो ये रिपीट होता जाएगा. ठीक है जी. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इट मीन्स 2 पर -1 2 पर -2 2 पर -3 2 पर -4. तो -3 क्या होता है, 1/8 होता है, प्लस 1/16. तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे इट विल बी 3/16, नियरली 0.2. ठीक है. तो दैट्स वाई 0.2 इज रिटन एज 0.00110011 ऐसे करके लिख दिया गया है. सो नाउ माई वैल्यू इज लाइक दिस इज द नंबर विच आई वॉन्ट टू पुट into my 32 bits. 00110011. तो ऐसे चलता जाएगा ये. Now I know that I have total 32 bits. First 23 है मेरे, इसको हम बोलते हैं मेंटीसा और फ्रैक्शन. नेक्स्ट 8 बिट्स मतलब 0 से 22 मेरे मेंटीसा में आ गए. 23 to 30 टोटल 8 होंगे. 23 से 30 तक काउंट करो तो इट इज 8 नंबर्स. तो 8 बिट्स विल बी फॉर माय एक्सपोनेंट एंड साइन बिट तो यहाँ पे 0 ही आएगा. वाई? बिकॉज आई नो माई 5.2 इज अ पॉजिटिव नंबर. तो ये तो चलो सॉल्व हो गया. अब एक्सपोनेंट की बात करते हैं कि ये एक्सपोनेंट मेरा ये क्यों लिखा गया, ये कहाँ से नंबर आया 1000 ऐसे करके 6 टाइम्स एंड देन 1. तो ये नंबर कहाँ से आया, ये यहाँ से आया. लेट्स से नाउ दिस इज माई नंबर विच आई वॉन्ट टू रिप्रेजेंट. बट ये भी नहीं कर सकते कि हम डायरेक्टली हमारे 32 बिट में ये नंबर डाल देंगे 10100110011 ऐसे करके फिल कर देंगे, ये गलत है. तो इसका थोड़ा सा छोटा सा प्रोसेस है, वो क्या करना हमने, वी विल कन्वर्ट दिस 101.0011 इनटू ए फॉर्मेट के मेरा सिर्फ 1 के बाद डायरेक्टली एक पॉइंट आ जाए. ठीक है. 1 के बाद पॉइंट आए तो मतलब अगर इस इतनी हिस्से को आप ध्यान से देखोगे, it means that I have shifted this point value to this place जहाँ पे सिर्फ एक 1 आया, उसके बाद मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाना है. तो अगर आप किसी चीज का पॉइंट शिफ्ट कर रहे हो तो आपको इंटू 10 टू द पावर और इन दिस केस इंटू 2 टू द पावर समथिंग करना पड़ेगा, राइट? तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो दैट इट विल बी इक्वल टू 1.0100110011 डॉट 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 into 2 to the power 2. Am I right in this? If you have a doubt you can ask. दोबारा बता दो, समझ नहीं आया. अब देखो यहाँ पे अगर मैंने 999 को अगर मैं ऐसे लिखूं 9.99 इंटू 10 टू द पावर 2, क्या ये सही है? यस सर. है ना? सेम चीज मैंने यहाँ पे करी है कि मेरा नंबर था 101.00110011 था, बट मेरा एक रूल है दैट आई हैव टू शिफ्ट दिस डॉट टू ए प्लेस कि लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ एक 1 रह जाए. ठीक है. अब ये डिपेंड करता है कि अगर मेरा नंबर ये था, इफ माई नंबर वाज दिस, तो इस केस में मुझे इधर जाना पड़ा. अगर मेरा नंबर ऐसा होता लेट्स से 0.00110011, तो क्या मैं अभी भी इधर करता? नहीं,
ये गलत हाँ। होता। आई हैव टू फाइंड ए 1, तो मैं इस केस में इधर लेके जाता, तो मैं अपने यहाँ पे राइट हैंड साइड पे लेके जाता और मैं इसको लिखता 1.10011 इंटू 2 to the power, क्योंकि राइट हैंड साइड पे लेके जाना है, इट विल बी -3, अगर ये वाला होता सेकंड केस। बट अगर मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे डॉट लेके जाना है तो मैं मल्टीप्लाई बाय 2 to the power 2 करूंगा, क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे जाना था। ये थोड़ा सा सर ये समझने की। 2 टू द पावर क्यों करते हैं, मतलब जैसे हम 10 तो की पावर 10 नहीं टू द। करेंगे? यस सर। बाइनरी है ना इसलिए sir। हाँ मतलब बाइनरी है इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, अदरवाइज आप 10 का ही समझ लो, लेट्स से आप 10 के साथ ही कर लोगे। बट देन वी आर डीलिंग विद बाइनरी नंबर, इसलिए मैंने 2 किया था। बस इसका ये मतलब समझ लो, यहाँ पे ये वाला बात जरूरी नहीं है कि आप 2 की पावर कर रहे हो या 10 की पावर कर रहे हो। इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि अगर आप 101.0011 खेल रहे हो, तो अगर आपको इधर आना है तो आपको एक्सपोनेंट में पावर 2 चाहिए, अगर आपने वापस वहां पे पहुंचना है। यस और नो? यस सर। यस सर। ये समझ में आ रहा है? क्योंकि यस मुझे सर। 1.01 को अगर 101 बनाना है तो यार मल्टीप्लाई 100 करना ही पड़ेगा ना। यस सर। हाँ, तो बस इतना याद रख लो, यहाँ पे मेरा एक्सपोनेंट 2 आएगा अगर मैं ये वाली कैलकुलेशन करता हूँ, बिकॉज आई एम यस सर। कन्वर्टिंग दिस नंबर इनटू दिस फॉर्म, तो मेरा एक्सपोनेंट +2 आएगा। वही बात अगर ऐसे होती, इफ दिस नंबर वुड हैव बीन सिर्फ इतना, अगर सिर्फ इतना होता तो मुझे इधर आना पड़ता, इनफैक्ट नॉट इधर बट यहाँ पे, ये वाला नहीं, इधर आना पड़ता, क्योंकि मुझे एक 1 चाहिए था। नाउ बिकॉज आई एम कमिंग टू द राइट हैंड साइड, तो मुझे इस केस में 1.100110011 ऐसे कुछ करके इनटू e⁻, यहाँ पे क्या आता, क्योंकि मैं राइट हैंड साइड पे मूव कर रहा हूँ, तो -3 आता। -3। समझ आ गया सबको क्या हो रहा है? यस यस सर। सर। अब यहाँ पे एक और चीज का ध्यान रखना है, जो भी मेरा एक्सपोनेंट में नंबर आएगा, +2 आया या -3 आया, उस नंबर को 127 में प्लस या माइनस करना है। 127 में या +2 करेंगे या 127 में -3 करेंगे, वट एवर द सिचुएशन इज। इस केस में +2 करना था क्योंकि मेरा एक्सपोनेंट 2 आया था। एक्सपोनेंट को ऐड करना 127 में। उसके पीछे रीजन सिंपल है, बिकॉज आई नो दैट माई जो लिमिट होता है कैर का, मतलब इस केस में मतलब ऐसे कुछ याद कर लो कि अगर आपका सपोज -128 टू 127 का 7। काउंटिंग था, तो अगर आपका कोई नेगेटिव नंबर होगा तो वो नेगेटिव नंबर को भी +127 करके पॉजिटिव में लेके आया जाएगा। वैसे तो ये -127 128 नहीं आएगा, ये एट मैक्स -127 तक जाएगा ये, ठीक है। और उस केस में क्या होगा, अगर आप +127 कर दोगे तो आपका वापस वो 0 पे आ जाएगा, एक्सपोनेंट वाला फॉर्म। एक छोटा सा ठीक है ये सर। ट्रिक होता है, इसलिए मतलब ये हम क्या कर रहे हैं कि हम नेगेटिव नंबर को भी डील करने के लिए कि चल ठीक है तो मैक्सिमम इतना ले ले, फिर भी मैं तेरे को संभाल लूंगा, तो 127 ऐड करना पड़ेगा वट एवर माई एक्सपोनेंट इज। तो 127 + 2 129 हुआ, 129 को वी कैन रिप्रेजेंट इट एज दिस नंबर। सर ये 127 कहाँ से है सर, जस्ट ये नहीं समझ आ रहा, वो जो आपने लिमिट लिखी थी वो क्या था? देखो वो सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि एट मैक्स आपका जो एक्सपोनेंट होगा, एट मैक्स इट माइट बी 127 माइनस में, मतलब आप e⁻ -127 एट मैक्स जा सकते हो। ये कैसे बता? ये कैसे पता, ये है लेट्स से आई हैव माय नंबर, फ्लोटिंग नंबर है, फ्लोट नंबर की रेंज क्या होती है, 2 to the power -32 टू यस। 2 to the power 31, 31। 31 नहीं होता ये, -1। -1 हुआ। हाँ, तो इस केस में एक कन्वेंशन है कि जब भी आप 32 बिट फ्लोटिंग नंबर से डील कर रहे हो, आपको 127 ही एट मैक्स ऐड करना है। अब इस केस में ये एग्जैक्टली कैसे हो रहा है, इन्होंने 127 ही क्यों सोचा, अब ये तो बनाने वाले को पता है जिसने रूल बनाया है, बट एक ओके सर। 127 से लेकिन हो जाता है काम, वो इसलिए कर रहे हैं इन केस मेरा इतना बड़ा नेगेटिव नंबर आ जाए पावर में, उसको भी हम +127 करके एटलीस्ट उसको 0 कर देंगे। एटलीस्ट हमारा जो ये वाला हिस्सा है 8 बिट्स का, जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है एक्सपोनेंट का, ये वाला फिल मेरा हो जाएगा, ठीक है। ठीक है अच्छा, सर। अगर 127 या उससे ऊपर हुआ तो फिर ये बाहर चले जाएगा, 8 बिट से भी ज्यादा देने पड़ेंगे फिर। हाँ हाँ हाँ, ओके ठीक है सर, क्लियर हो ठीक गया। है। एक्चुअली यही रीजन है कि जैसे इसका मैक्सिमम नंबर कितना है,
नेगेटिव में इसका मैक्सिमम नंबर 128 है। अगर सारे बिट 1, अच्छा हाँ ये मेरे को याद आ गया, अगर सारे बिट 1 हो जाएं तो क्या वैल्यू होगी बताओ मेरे को। टोटल सम कितना होता है इन सब का? 1 2 4 8 16 32 64 128। सारे बिट 1 हो जाए तो ये 255 है। 255 है, ठीक है। लेकिन अगर साइंड नंबर हैं ये सारे अगर 1 हो जाएंगे तो फिर ये इसको किसको रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव नंबर में? नेगेटिव नंबर को। इट विल बी -1। -1 sir. ठीक है, तो मतलब हम इतना मैथ्स में नहीं जाएंगे अभी के लिए, सिर्फ इतना याद रख लो कि वट एवर माई ई का वैल्यू कम्स उसमें 127 ऐड करेंगे एंड वी विल गेट दिस नंबर। और ये वाला ओके कॉपी पेस्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे, विच विल बी ओके। फिलिंग योर 23 से लेके 31 नंबर बिट। 31 नंबर पे 30 यस। 30 नॉट 31, 30 ओके 31 पे तो ये बैठा है। तो नाउ इतना क्लियर हो गया कि मेरा फर्स्ट बिट तो 0 आना ही था क्योंकि मेरा पॉजिटिव नंबर है। उसके बाद मुझे ये भी क्लियर हो गया कि यार अगर मैं इसको पूरे को सॉल्व करूंगा तो मेरा 1.01 इन 00 ऐसे कुछ करके e⁻+2 आएगा। उस पावर को ऐड किया 129 आएगा। 121 को हम ये लिख सकते हैं इसलिए हम ये लिख देंगे यहाँ पे 129 ऐसे करके। हाँ जी, किसी ने कुछ बोलना था अभी? सर ये डेसिमल वाला नहीं समझाया कि हमने 0.2 को 00110011 कैसे लिखा कंटिन्यूटी में। देखो यार, मतलब अगर आप 0.2 को सॉल्व करोगे, कैसे करते हो 0.2 को? अगर ये मेरा डेसिमल नंबर है इसको मैं बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करता हूँ? मल्टीप्लाई 2 कर करके 0.4 आएगा तो ये 0 यहाँ पे आ जाएगा एज इट इज। फिर 0.4 को मल्टीप्लाई 2 करोगे 0.8 आएगा तो फिर से ये 0 वाला कॉपी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 0 0 बन गया 2 बार। उसके बाद 0.8 को आप मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 1.6 आएगा, इसलिए ये वाला 1 यहाँ पे आ जाएगा तो ये बन गया 001। और 0.6 को मल्टीप्लाई 2 करोगे इट विल बी 1.2। इट इज गिविंग मी द आंसर ऑफ 0011। और उसके बाद 0.2 वाली दोबारा गेम शुरू हो जाएगी तो इसलिए 0011 रिपीट होता जाएगा। यस और नो? यस सर। Yes sir. तो ये इसलिए 0.2 हमारा 0.0011 आ गया। इतना सबको क्लियर होगा कि हुआ क्या है अभी तक? अब हम आखिरी की बात करते हैं, लास्ट के 23 बिट कैसे फिल करने हैं। वैसे तो आप गेस कर सकते हो। नाउ दिस इज माय पॉजिटिव साइन, दिस इज माय 129 जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। ये क्या आया? ये मेरा वो आया जो मेरा पॉइंट के बाद यहाँ पे बचा हुआ था, पॉइंट के बाद की सारी कहानी 01 0011 0011 0011 0011 टिल आई फिल टोटल 23 बिट्स। इजी है? Yes sir. फ्रैक्शन पार्ट है मतलब। हाँ जी, क्या कह रहे हो? Fraction part मतलब other Mantissa. हाँ, जो अपना फ्रैक्शन पार्ट है वो मेंटिसा है। यही तो मैंने पीछे बोला था, जो हमने पीछे स्लाइड देखी थी उसमें मैंने यही बोला था कि फ्रैक्शन मेंटिसा होता है यहाँ पे, ये Yes वाला sir. फ्रैक्शन मेंटिसा होता है। अब यहाँ सर पे ये हाँ जी, मैंटीसा वाला कहीं पड़ा पड़ा सा लग रहा है, लॉग लॉग में आता था ये मैंटीसा वाला। मिक्स मत करो यार, मतलब अभी इसमें लॉग का कोई कंसेप्ट नहीं है तो अभी के लिए इसको मिक्स मत करो। अभी हम ये ठीक क्या, है sir. अभी एक छोटा सा काम करते हैं मिलके, हम इसको डिकोड करते हैं और देखते हैं कि क्या मेरा यही आंसर आ रहा है 0.15625। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। मेरे 32 बिट मेरे सामने है, मुझे इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट जीरो से पता चलता है नंबर पॉजिटिव है। उसके बाद हम पावर ढूंढते हैं, पावर क्या है? हमने यहाँ पे सॉल्व किया था ये 124 आया था, यस और नो? Yes sir. तो 124 का मतलब है कि मुझे 127 में से -3 करना पड़ा, इसका मतलब मेरा एक्सपोनेंट -3 है। यही था? Yes यस sir. सर। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 1 पॉइंट ये सीधा चेप देंगे सर। हाँ तो ये क्या है 0 1 0 0 0 0 सारे 0 है ये, तो यहाँ पे 0 1 की ये गेम तो मेन। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इट विल बी इक्वल टू 1.010000 इंटू e⁻³ एंड दिस विल बी एक्चुअली इक्वल टू 0.00101000000 ऐसे करके। अब इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा, ये समझ में आया हुआ क्या है यहाँ पे? यस सर। Yes sir. इजी था। मैंने यही बोला था ना कि अगर आपका -3 है इसका मतलब हमने उसका जो भी हमारा नंबर आया था, मतलब 1 तो इधर लाना ही था, तो 1 के बाद जो भी मेरा फ्रैक्शन पार्ट होगा मैंने वो लिखा और e⁻³ करा, उसको कन्वर्ट करके मेरा ये नंबर आ गया। ठीक है, तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, इट विल बी इक्वल टू 2 to the power -1 2 to the power -2 2 to the power -3 -5
तो यहाँ पे 2 to the power -3 जो कि 1/8 है, प्लस 2 to the power -5 विच इज इक्वल टू 1/32, इनको ऐड करके ये नंबर आ जाएगा। आई होप एग्जैक्टली यही होगा। सर आ गया। बस ठीक है, इजी हो गया डिकोड करना। यस सर। ओके गुड। अब ये देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। अब इसमें हम इसको डिकोड करते हैं, वट एवर द नंबर रिटन हेयर वी हैव टू डिकोड। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक्चुअली ये 4 का 4 4 12, ये हो गए 20, 20 और 3 23, तो यहाँ तक हो गया मेरा मैंटीसा। ये वाले 8 बिट्स हो गए मेरे एक्सपोनेंट के, और ये मेरा साइन बिट है। ठीक है, मुझे यही कंफर्म करना था कि अलग से ऊपर 0 क्यों है। देखो साइन से पता चल रहा है कि नंबर पॉजिटिव है, इससे पता चल रहा है कि मेरा ई का पावर क्या है, -8 सर। नहीं +1 सॉरी +1 +1 क्योंकि ठीक है सर। हाँ इसमें से 127 माइनस करेंगे ना, तो 128 माइनस 127 इक्वल टू 1, तो ई की पावर 1 है। चलो समझ यस में आ सर। रहा है। अब क्या रह गया 1 1 0 0, ये जो है तो इसको करेंगे हम 1.11 0 0 0 0 इंटू ई टू द पावर +1, यही होगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सॉल्व करके 11.1, ये मेरा बाइनरी है, इसको मैं सॉल्व करूंगा इट विल बी इक्वल टू 3.5। बड़ा आसान था यार, स्लाइड देख के टफ लग रहा था पर इतना है नहीं। मेरे को दोबारा ये करना है, ये वाला क्वेश्चन रिपीट। दोबारा कर ये रहा हूँ। डी क्या है? डी डेसिमल नंबर, वो ओके। बेस 10 बताने के लिए कर दिया। ये बी मतलब बाइनरी एंड डी मींस डेसिमल। ठीक है, अब देखो इजी है, आराम से दोबारा करते हैं। आई विल एक्सप्लेन इट इजीली। वी हैव द साइन नंबर एज 0, इतना देख के पता चल गया नंबर मेरा पॉजिटिव है, यस और नो। यस सर। दिस इज माई एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट में हम क्या करते हैं, अगर मेरा ऑलरेडी गिवन नंबर है तो मुझे इसमें से पहले कैलकुलेट करना है वैल्यू। इट इज इक्वल टू 128 माइनस 127 कर दो, क्योंकि अब हम प्रोसेस उल्टा कर रहे हैं, तो मेरा एक्सपोनेंट इज इक्वल टू +1। तो मुझे ये पता चल गया कि जो भी मेरा नंबर आएगा यहाँ पे आई विल हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई ई टू द पावर +1, मतलब मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा एक ठीक है पॉइंट सर। राइट हैंड साइड पे करना पड़ेगा, इसलिए +1। एंड दिस इज माई पॉइंट वाला चीज। ठीक है, मतलब जितना फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन वाली चीज है यहाँ पे। तो मैं इसको फ्रैक्शन को कैसे लिखूंगा, नॉर्मल मुझे 1 तो लिखना ही है, यहाँ पे 1 पॉइंट तो आना ही आना है, 1 पॉइंट तो यस आना सर। ही था बिकॉज आई हैव दिस थिंग। बट नाउ ये वाली फ्रैक्शन मैं यहाँ पे चिपका दूंगा एज इट इज, ये वाले 23 बिट मेरे यहाँ पे आ जाएंगे, इसके बाद 1 पॉइंट के बाद इट विल बी 1 1 0 0 0 0 0 0 अप टू जितना भी है ये। एंड नाउ माई नंबर विल बिकम 1.11 into e to the power 1, which is actually equal to 11.1, yes or no। यस सर, यस। ये 3.5 आ गया। इसको सॉल्व कर लो, 3.5 आ गया, आसान था। सर इसमें जो एक्सपोनेंशियल है वो तो 127 में से माइनस करते थे ना, तो ये 128 तो बड़ा नहीं चला गया 127 से? अरे नहीं यार, देखो मैंने क्या बोला था, जब हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, सपोज उल्टा जाना है, डेसिमल को इसमें रिप्रेजेंट करना है, मतलब फ्लोटिंग नंबर को उसमें करना था, तो मैं क्या करता था, इसको 11.1 लिख के 11.1 मतलब मेरा आ जाता, उसके बाद मैं क्या करता, इसको इधर शिफ्ट करना था, यस और ये होता मेरा 1.11 इंटू ई टू द पावर 1, यही होता। यस। फिर मैंने बोला था कि इस 1 में 127 ऐड करोगे, ओके आपका ओके ओके 128 आएगा, उसको हम एक्सपोनेंट वाली जगह पे भरेंगे, यहाँ पे जो मेरा ये ओके वाला सर। भरा हुआ है, ये सर नो। ओके सर, समझ गया सर। हाँ वो अब इसमें गेम उल्टा था, इसलिए फिर ऐसे समझाया। सबको समझ आ गया हुआ क्या है। यस सर। यस सर, if anyone has doubt you can ask right now, this is the best time। सर एक्सपोनेंट में 1.11 जो आपने लिखा, यार देखो इसको ना आप डेसिमल से समझो। when we say yes, so when we say that I have to write 999, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 9.99 into 10 to the power 2, yes or no। सर वो 1 कैसे है मुझे पूछ रहा अरे बता रहा हूँ यार, ये समझ में आ गया। 999, अरे इतना तो कर ही सकते हो, ये तो हो जाएगा हाँ जी सर। वापस, हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि वो आप कह रहे हो कि वो 1 कैसे आया। ठीक है, मुझे पता है कि ये मेरा एक्सपोनेंट का हिस्सा है, और इससे मुझे एक्सट्रैक्ट करना है कि मुझे ई की पावर कितनी रखनी है। तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे, दिस विल बी इक्वल टू 128 इन डेसिमल। ठीक है जी,
Now if I subtract 127 out of it, I will get the E value which I have to use to get the final answer. जो भी मेरा यहाँ पे नंबर आएगा वो 1 पॉइंट समथिंग जो भी मेरा फ्रैक्शन था वैज लिख दूंगा मैं 110000 ऐसे करके। ये टोटल कितने जीरो हुए, 21 जीरोज हैं, तो ये 21 जीरो होंगे। बट देन if I solve this 1.11 into e to the power 1, इसका मतलब है it is equal to 11.1 and we are playing in binary। समझ आ गया? सर वो 1.1100 जो आया वो कैसे है? अरे यार ये रूल है, जब भी हम कन्वर्ट कर रहे थे, ये आप इसको यहाँ पे कंफ्यूज करोगे ये वाला 1 पॉइंट कहाँ से आया। हाँ जी सर। तो ये तो रूल था कि मुझे जब भी कोई नंबर कन्वर्ट करना है, सपोज मुझे नंबर दिया गया है, लेट्स से आई वांट टू कन्वर्ट 3.5 into something which is called IEEE 754 32-bit floating point convention। ठीक है, अगर आप इसको इसमें कन्वर्ट करोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, पर वो मिलेगा कैसे, उसके लिए मैंने एक गेम बताई थी that we have to find इसका पहले equivalent which is equal to 11.1। yes or no? यस सर। ठीक है, ये बेस 10 था, तो इसको आपने 11.1 करके ये बाइनरी में कर लिया। फिर मैंने क्या बोला था, आप इसको पॉइंट को वहां शिफ्ट करो जहां पे आपको एटलीस्ट यहाँ पे एक मिल जाए लेफ्ट हैंड साइड पे। तो इसको 1.11 को इनटू e टू द पावर 1 लिख सकता हूं मैं। फिर अगर आप इसको 128 कर दोगे तो क्या ये 128 ऐसे नहीं आएगा? उसके बाद मैंने बोला कि आप इसके 0.11 जो भी है वो सारा इधर डाल दो। तो वही तो किया है, लेकिन अब यहाँ पे ये वाला 1 तो छिप गया ना, ये यहाँ पे देख के तो नहीं पता चल रहा। अगर ये भी देख के पता चल जाता फिर क्वेश्चन ही किस बात का बनता। ठीक है, जिसको कंसेप्ट पता है उसको पता है कि यार ये मुझे 1 पॉइंट लगाना पड़ेगा बिफोर दिस फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन पार्ट मैंने लिखना है यहाँ पे, इससे पहले मुझे 1 पॉइंट लगाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस दैट आई नो इन एडवांस। यहाँ से आया 1 पॉइंट। समझ आ गया हुआ क्या? जी सर। ओके, नाउ दिस इज exercise, let's do it quickly. Now if I want to write this minus 7.5 decimal number into 754 IEEE format and यहाँ से हमें पता चल रहा है कि चलो 32 बिट में करना, बिकॉज आपके सिलेबस में 32 बिट है, अदरवाइज 64 बिट भी होता है। फॉर नाउ आई वांट टू कन्वर्ट दिस minus 7.5 into my 32 बिट का कन्वेंशन। तो माइनस का मतलब है कि जो मेरा साइन बिट है वो तो मेरा 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद एक्सपोनेंट की अभी देखते हैं क्या आएगा, फिर उसके बाद 23 बिट्स आगे के आएंगे वो भी देखते हैं। नाउ इफ आई कन्वर्ट दिस नंबर इनटू बाइनरी इट विल बी इक्वल टू 111.1। यस और नो? ये सबको समझ में आ रहा है हुआ क्या है? 7 को Yes, sir. लिखा और 0.5 को लिखा और कुछ नहीं करा। यस सर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1.111 इंटू ई टू द पावर क्या आएगा यहाँ पे 2। 2 आएगा। अब 2 में 127 ऐड करोगे 129 बन जाएगा। इट विल बी इक्वल टू 1.10000001। ये वाला एक्सपोनेंट आपका यहाँ पे फिट हो जाएगा। Yes, यस sir. और नो? Yes, ठीक है, sir. उसके Yes, बाद sir. में ये सारी हाँ राम जी सर। डाल दो यार 111000020 क्योंकि 3 ये आ गए, उसके बाद 20 और टोटल 23, खत्म कहानी। ठीक है यस सर। सर। 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 and last one. So this is the 32-bit convention of minus 7.5. Easy था? यस यस सर। सर। You have to solve this now। अपने आप करो। 1 का मतलब फर्स्ट वाला है यहाँ पे नेगेटिव नंबर, उसके बाद आप 8 बिट्स देख लेना कितने बनेंगे, कहाँ तक जाएगा। ठीक है, उसके बाद के 23 बिट्स को सॉल्व करो, हो जाएगा, इजी है। आई थिंक दैट्स ऑल। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इतना सिलेबस। वी हैव डिस्कस्ड द बाइनरी नंबर सिस्टम, वी हैव डिस्कस्ड द कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, algorithm flowchart, generation of programming languages, and even we have discussed this today about how to convert your decimal number into floating point representation so that it can be saved into the memory। ठीक है, अब इसका ना I don't know आपका सिलेबस में है या नहीं, I just want to give you the idea। If you want to convert your decimal number, whatever the number is, floating number, maybe 3.5, not into 32 bit but into 64 bit convention, तो उसका एक आइडिया दे देता हूँ। जो कुछ हमने यहाँ 32 बिट में करा है वही सब कुछ इधर करना है। बस यहाँ पे जो लिमिट थी इट वाज 0 to 22, 23 बिट हमारे मेंटीसा के थे,
फिर मेरे 23 से लेके 30 तक इट वाज माय एक्सपोनेंट एंड 1 बिट वाज माय साइन बिट। ठीक है, ये साइन बिट था। नाउ फॉर 64 बिट द डायमेंशनलिटी विल चेंज, साइन बिट विल बी ओनली 1, एक्सपोनेंट वाला विल बी 11 बिट्स। तो सपोज ये मेरा 63 नंबर होता, इनिशियली 0 था, 0 to 63 64, तो 62 से लेके आई गेस 52 तक ये सब आपके एक्सपोनेंट में आएंगे 11 बिट का, एंड 0 to 51 which is total of 52 bits that will be your Mantissa। प्रोसेस सेम है, बस लिमिट्स बढ़ गई हैं। और इस केस में जैसे यहाँ पे 127 ऐड करते थे, ठीक है, अब यहाँ पे आई गेस इट विल बी, क्योंकि 11 हैं, 8 थे तो हमने 127 ऐड किया था, 11 हैं तो हम 2^11 करके 2048 आएगा। इसमें 128 था तो इसलिए -1, तो यहाँ पे -1, इसमें 2047 ऐड करना होगा फॉर दिस थिंग। ठीक है, तो आपका 2047 वैल्यू आप ऐड करके यहाँ पे डालोगे एक्सपोनेंट का, और मेंटीसा एज इट इज आ जाएगा। मतलब दैट्स हाउ यू डील इफ यू गेट ए क्वेश्चन फॉर 64 बिट। वैसे तो इट्स नॉट इन योर सिलेबस, बट थोड़ा सा आइडिया देने के लिए आई हैव डिस्कस्ड that this is how you I mean you have to fit the 32 bit in which you have 1, 8 and 23 bits in case 32 bit are there। बट अगर आपके पास 64 बिट हैं तो आपके पास 1, 11 एंड 52 बिट्स, ये वाला 3 का कॉम्बिनेशन होगा, एंड यू कैन गेट द वर्क डन। यहाँ पे 8 बिट्स के लिए we used to add 127 into the number, but now we have 11 bits, so we will add this thing 2047। ठीक है, that's all for this topic। Now we will move to the next topic। Let me switch the slide। If you have a Sir- doubt पूछ लो। हाँ जी। सर एक मैंने एकदम स्टार्टिंग का थोड़ा सा रह गया था, तो ये IEEE 754 एग्जैक्टली है क्या, वो मैंने सुना था। यार देखो, IEEE ना एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। IEEE इज ए ऑर्गेनाइजेशन जिसका फुल फॉर्म इज आई थिंक इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। ठीक है, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ IEEE, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। IEEE बहुत फेमस है, आप सर्च करना इसके बारे में, यू विल गेट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिसर्च पेपर्स आल्सो। जितने पब्लिकेशंस होते हैं, IEEE इज ए वेरी बिग नेम इन दैट। 754 इज जस्ट वन कन्वेंशन, उसमें से उनके बहुत सारे रूल्स हैं, उसमें से 754 इज ए कन्वेंशन जहाँ पे हम 32 बिट को कवर करते हैं, 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट कन्वेंशन को। ठीक है, दैट हाउ डू यू पुट दैट फ्लोटिंग नंबर, यहाँ पे डेसिमल नंबर लिखा हुआ है, बट डेसिमल नंबर यहाँ पे इसका मतलब है कि जहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाए। डेसिमल का मतलब जहाँ पे हमारा डेसिमल आ जाए, 3.5 है, 5.7 है, मे बी 125.258 है। अगर इसको हमें 32 बिट में डालना है तो वो रैम में कैसा दिखेगा, उसके बारे में हमने अभी चर्चा करी है। ठीक है, जो हमने अभी बात करी थी। ओके सर। हाँ जी, सो 1, 8 and 23 बिट्स विल बी देयर इन दैट। सो दैट्स ऑल, मतलब यही टॉपिक था। So let's move to the next slide, give me 1 second। So now basic about C programming। जितना भी C programming we have already done in labs, और the basic we studied in the first 2 lectures कि hello world बना लिया, उसमें int main क्या होता है, return 0 क्या होता है, वो सब अब दोबारा देखते हैं फटाफट से। ठीक है जी, I hope you can see my basics about C programming screen। Yes, sir. ये चल क्यों नहीं रहा आगे, 1 second। Okay, so this is how we will go in this slide। It might take 4 or 5 lectures। So structure of C program, life cycle of a program, compiling and execution, keywords, identifiers। So first 3 topic तो आपको कुछ ना कुछ पता है already। We will, in addition to that, we will cover these keywords, identifiers, primitive data types, variables, constant, IO operators, and then type conversion। So we will be covering all these topics in this particular set of slides। So now this is the structure of C program। A C program is divided into different sections। सबसे पहले तो देखो, we know that comments होते हैं कोड में, and can anyone tell me how do I give multiple line comment in C program? अगर मुझे multiple line comment बनाना है, So backslash and star. Backslash star। Yes, sir. बैकस्लैश स्टार, यस। अगर आप इस ऐसे वाला एक सिंबल डाल के कुछ भी लिखोगे, 4-6 लाइन लिख लो, और एंड में स्टार एंड दिस स्लैश,
ठीक है, मतलब ये बैक स्लैश नहीं, एक सेकंड यार, ऐसे आएगा जैसे ये वाला है मेरा, ये सिंगल लाइन कमेंट है। अगर मल्टीपल लाइन करना है तो फॉरवर्ड स्लैश आएगा, बैक स्लैश नहीं आएगा, इट इज़ फॉरवर्ड स्लैश। तो मल्टीपल लाइन कमेंट करना है तो यू विल गेट दिस थिंग, ठीक है जी। तो जो कमेंट्री हम लिख रहे हैं अपने कोड में वो कंपाइलर यूज़ नहीं करता, कंपाइलर डज नॉट मतलब बस इग्नोर कर देता है, ठीक है, उसको प्रोसेस नहीं करता। सो दैट्स डॉक्यूमेंटेशन एंड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स और लिंक सेक्शन। कैन एनीवन टॉक अबाउट दिस थिंग, क्या होता है ये? सर ये इसको इंक्लूड को बोलते हो, जो हैश इंक्लूड हम लगाते हैं उसको हाँ, बोलते हैश हैं इंक्लूड प्रीप्रोसेसर डायरेक्ट stdio यस, जो हम ये यूज़ कर रहे हैं stdio.h और मे टू बी इंक्लूड लाइब्रेरी। yes, those libraries which are already available on the backend, उनको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स या लिंक सेक्शन बोलते हैं कि भाई मेरे कोड को लिंक कर दिया जाए पीछे लाइब्रेरी से ताकि मैं अपना काम करवा पाऊँ। अब printf scanf हम तो नहीं बनाएंगे उसका कोड, वो तो बने बनाए पड़े हैं पीछे। तो printf scanf को यूज़ करना है तो we use stdio.h, standard input output dot header file। एंड ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन है, सपोज मुझे अब इसमें ना एक लोकल और ग्लोबल का एक कंसेप्ट होता है कोडिंग में। लोकल का मतलब है सपोज मैंने अब इंट ए इंट बी करा, अब इंट ए इंट बी की जो लिमिट है ना वो इसके अंदर ही है, इस फंक्शन के अंदर है। जो ये ब्रैकेट शुरू हुई और ये ब्रैकेट खत्म हुए तो इंट ए इंट बी इस कोड में तो चल जाएगा। पर अगर मैं इसके बाहर कुछ लिखूं, सपोज मैंने लिखा मैंने यहाँ पे इरेजर, हाँ ओके, सो मैंने यहाँ पे लिखा a इक्वल टू 10, तो क्या ये मेरा कोड ये वाली वैल्यू यूज करेगा या अगर मैंने यहाँ पे a इक्वल टू 5 दिया ये वाली वैल्यू यूज करेगा? जल्दी बताओ। सर A दोनों ही equal करेगा। to ए तो ए इज इक्वल टू 10 वो तो ग्लोबल वाला है, और ए इज इक्वल टू 5 ये। हाँ, अब इसमें ना यही कंसेप्ट enclosed वाला यही वाला मैंने बताना था कंसेप्ट, जो आप मेन से पहले बाहर बाहर कर दोगे पहले, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे इंट ए इक्वल टू 10 लिख दिया तो ये आपका ग्लोबल इंटीजर है। ग्लोबल इंटीजर का मतलब है कि सपोज मैंने इंट ए इक्वल टू 10 लिखा, उसके बाद जी मैंने यहाँ पे एक इंट मेन फंक्शन बना दिया, इंट मेन मैंने जो भी काम करा, उसके बाद मैंने एक इंट सम फंक्शन बना दिया, ठीक है, और उसके बाद मैंने एक इंट मल्टीप्लाई फंक्शन बना दिया, ठीक है। तो मेरे सारे फंक्शंस में ये a यूज हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये तीनों से पहले उसको डिफाइन कर दिया गया, इसको बोलते हैं ग्लोबल। जो चीज इसके अंदर डिफाइन हुई थी, सपोज मैंने यहाँ पे इंट a इक्वल टू 5 लिखा था तो इसको बोलते हैं हम लोकल। जो चीज मेरी एक पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर बनाई गई है उसकी लिमिट फिर उतनी ही है, वो उससे बाहर नहीं यूज होगा, तो इसको हम बोलते हैं लोकल। अगर मेरी सबसे बाहर पहली मैंने बता दी कि मैंने ये चीज यूज करनी है, ग्लोबली यूज करनी है हर फंक्शन में, ये फंक्शन 1 था, ये वाला फंक्शन 2 था, ये वाला फंक्शन 3 था, इफ आई वांट टू यूज दैट वेरिएबल इन एवरी फंक्शन आफ्टर दैट, ठीक है, तो मैं उसको सबसे बाहर रखूंगा, मैं उसको किसी फंक्शन में डालूंगा ही नहीं, ठीक है। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज ग्लोबल। तो जहाँ पे भी a दोबारा डिफाइन नहीं होएगा वहां पे ग्लोबल वाली वैल्यू ले लेगा ना वो उसकी। हाँ, बाय डिफॉल्ट वो बाहर से उठा लेगा। सब प्रोग्राम सेक्शन क्या होता है वो सब अब देखते हैं हम, वी विल हैव मल्टीपल स्लाइड्स कवरिंग दिस टॉपिक्स, लेट्स सी। सर एलईजीबी रूल इसमें भी होता है या वो सिर्फ पाइथन स्पेसिफिक ही है? कौन सा रूल? एलईजीबी एलजीबी का फुल फॉर्म? लोकल एनक्लोज ग्लोबल बिल्ट इन। यहाँ पे अलग है, मतलब यहाँ पे सिर्फ वो तो चलो वो है ही है, लोकल ग्लोबल का यहाँ पे कंसेप्ट है, बट देयर आर आल्सो 1 और 2 मोर थिंग्स, ठीक तो है। वो कंसेप्ट तो पाइथन में नहीं आता, एलईजीबी जो कह रहे हैं। हाँ ये पाइथन वाला ही है। एलजीबी इन पाइथन, बट बस वहाँ पे नाम चेंज कर दिया, बना तो वो पाइथन सी से ही है ना। सी से ही है। हाँ, हाँ सी जी। का सब कुछ मतलब पाइथन का सब कुछ बैकएंड पे सी प्रोग्रामिंग से बना हुआ है। पाइथन अपने आप में लैंग्वेज जो क्रिएट हुई है वो बैकएंड पे सी यूज कर रही है। अब सुनो, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन मतलब हमने टॉप पे लिख दिया जी इट इज ए सम प्रोग्राम, सम ऑफ टू नंबर्स, जो ऊपर टॉप पे लिख देते हैं हम, ठीक है। तो वो चीज़ हम डॉक्यूमेंटेशन में लिख सकते हैं, या फिर लिख दो आपके मेड बाय जिसका भी अपना नाम लिख लो, ठीक है। उसके बाद लिंक सेक्शन जहाँ पे हम हेडर फाइल्स, प्री प्रोसेसिंग डेफिनेशन ये सब यूज कर रहे हैं, stdio.h, conio.h, conio अब यूज नहीं होता, बट conio पहले यूज होता था टू गेट द होल्ड ऑफ द आउटपुट स्क्रीन। सर वो हमारी ट्यूटोरियल क्लास है। हमारे भी प्रैक्टिकल क्लासेस स्टार्ट हो गई है। ओके, टाइम खत्म हो गया क्या? ओके हाँ जी सर। यस सर। ओके ओके, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर देन। ओके, ओके थैंक सर, यू, थैंक यू बाय। सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। या